Hello all my dear students, good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am present here with a new topic of chapter number 6, that is what? Fuel. Up till now we have discussed about combustion, types of combustion as well as flame, zone of flame. So today we will discuss with our next topic, that is fuel and types of fuel. So without wasting the time, let's quickly start. What is fuel? So we will start with fuel and will end up to adverse effect of burning of fossil fuel. So what is fuel? Substance. This is the substance that produce heat and substance that produce heat energy and light energy. Substance that produce heat energy and light energy on burning. ध्यान देने वाली बात क्या है? फ्यूल क्या हुआ? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. ऐसा सब्सटेंस जो हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है जब वो उसको क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे होते हैं. सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड, और वी कैन राइट, इज नोन एज fuel. For example, wood, coal, diesel, petrol, kerosene, cow dung cake, etc. ठीक है, अभी भी बहुत से हैं. आपका LPG है, हाइड्रोजन है, बहुत है. So substance that produce heat energy and light energy on burning is known as fuel, and example of that is wood, coal, diesel, petrol, kerosene, as well as cow dung cake and many more. Okay, what is the use of fuel? Use of fuel, as you know that used in cooking. आपके घरों में खाना बनाने के लिए आप कुकिंग में चाहे वो LPG यूज़ करते हो, काऊ डंग यूज़ करते हो या कुछ भी है. सो यूज़ इन कुकिंग, जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी इन ऑटोमोबाइल्स. आपने देखा होगा आपके आसपास जो भी वाहन चलते हैं, चाहे वो बसेस हों, स्कूल की बसेस हों, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, बाइक हैं, तो सभी में हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं. एंड ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यानी इसका हम यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. नाउ वी विल डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ फ्यूल. अब यहाँ से हम देख लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्यूल. So fuel is found in all three formats. It means that solid form, liquid form and gaseous form. तो सबसे पहले solid fuel, then after liquid fuel, then after gaseous fuel. We will discuss here all these three. कौन कौन से? Solid fuel, as well as liquid fuel, as well as gaseous fuel, along with the example. Fuel that exist in solid state, at room temperature. Fuel that exists in solid state at room temperature is known as solid fuel. ठीक है, you can take the example of here. Various examples are here: wood, coal, as well as we can take the example of cow dung cake, etc. ये सभी क्या है बेटा? सॉलिड फ्यूल है, जिसमें आपका वुड है, कोल है, काऊ डंग केक है एंड मैनी मोर. व्हाट इज लिक्विड फ्यूल? यहाँ से आप देखेंगे फ्यूल दैट exist in
liquid state, fuel that exists in liquid state at room temperature, ऐसा फ्यूल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज लिक्विड फ्यूल, इज नोन एज लिक्विड फ्यूल। एंड जितने भी आपने देखा होगा डीजल, केरोसिन as well as petrol, all these are in the form of what, liquid fossil fuel। इसी में गैसियस में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। द फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन gaseous state at room temperature, ऐसा फ्यूल जो कि गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज समवॉट गैसियस फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हियर बेटा पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, और इसमें आप ले सकते हैं बायोगैस। Now it's time to add ETC. So up till now we have discussed about that what is fuel and types of fuel. Fuel आपको पता हो गया, substance that produce heat energy and light energy on burning is known as fuel। यानी burning कब होगी, in presence of air होगी। 3 possibilities है सॉलिड फ्यूल का मतलब जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में रहे, यानी आपने देखा काऊ डंग है, कोल है, ये सभी। लेट्स कंसीडर लिक्विड, उसमें आपने देखा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, और गैसियस फॉर्म में आपका जो भी नेचुरल और कोल गैस है, नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम गैस आप कह लीजिए, वो सभी वहाँ पे आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल एंड व्हाट इज आइडियल फ्यूल। ओके देन स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल के क्या कैरेक्टर होते हैं। सो वी विल कंसीडर 2 मेन, फर्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड सेकेंड efficiency। in characteristics of fuel 2 characteristics are considered, those are calorific value and efficiency of fuel। what is calorific value? This is the amount of heat released in kilojoule on burning of 1 gram of on complete amount of heat released in kilojoule on complete burning of 1 gram of fuel is known as calorific value। यानी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिलीज ड्यू टू कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। एक्सप्रेस्ड इन, इसका हम एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, यानी यूनिट अगर हम देखें तो क्या होती है, किलो जूल पर मोल। एक बार फिर से देख लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन किलो जूल ऑन कंप्लीट बर्निंग, ये ध्यान रखना, कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल के कंप्लीट बर्निंग से जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी हम कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं। सीरियल नंबर, सब्सटेंस नेम और सब्सटेंसेस एंड हियर कैलोरीफिक वैल्यू। एक बार देख लेते हैं फटाफट 3-4। सीरियल नंबर 1 डीजल, पेट्रोल, केरोसिन,
डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वुड, कोल and hydrogen. Let's consider one more, methane. यहाँ पे बेटा होता है कितना 45, पेट्रोल 47, केरोसिन 48, इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ हैं ये। यहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं, एक टेबुलेशन आप बनाएंगे ऐसे टेबल, और इस टेबल में एंट्रीज आप करते जाएंगे, ऊपर से भी आप ऐसे बनाएंगे अच्छे से बाय यूजिंग द स्केल। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वुड कितना है बेटा आपका 17, कोल 25 to 33, हाइड्रोजन बेटा 150, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 150, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन दैट इज 55। लेट्स कंसीडर फ्यू मोर हियर, कोक, वी विल कंसीडर वन मोर दैट इज कोक। कोक का भी देख लेते हैं, कोक 33 एंड वन मोर एलपीजी 50। तो ये बेटा कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज हैं किसकी, अलग अलग सब्सटेंसेस की। दिस टेबल इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT, फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट मेक इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 ऑफ फ्यूल, दैट वाज कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम बात करेंगे बेटा एफिशिएंसी की। सो व्हाट इज एफिशिएंसी? सो व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, some amount of energy is not used off। यानी जब कभी भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी हम यूज नहीं कर पाते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड और दैट इज कंप्लीटली यूज इज नोन एज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन फ्यूल इज बर्न सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट यूज्ड ऑफ, एंड एनर्जी दैट इज यूज्ड, energy that is completely used is known as fuel efficiency। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसमें 100% एफिशिएंसी हो। उसका रीज़न क्या है, जब कभी भी हम बर्निंग करते हैं या फ्यूल का कंबशन होता है तो कंप्लीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। दैट इज नोन एज व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही अच्छा है। कहने का मतलब जितनी से ज़्यादा एनर्जी हम यूज़ कर ले जाएंगे वो हमारे लिए अच्छा है। अब हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल, सो व्हाट इज आइडियल फ्यूल? द फ्यूल, कुछ कैरेक्टर्स हैं, द फ्यूल दैट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, ऐसा फ्यूल जो कि सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। ठीक है, दैट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। सेकेंड, कैन बी easily stored and transported, इसको आसानी से आप स्टोर कर सकें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। ओके, नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट, नो any harmful release of gases during burning। जब कभी भी बेटा बर्निंग आप करेंगे इनकी तो वहाँ से कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट should not cause
pollution, यानी ऐसा फ्यूल जो कि बर्निंग के बाद पोल्यूशन नहीं करता है, should not cause pollution after और ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के बाद या बर्निंग के समय कोई भी वो पोल्यूटेंट ना रिलीज करे। नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल फ्यूल। दिस वन इज ऑल्सो वेरी प्रीमियर कैरेक्टर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। लेट्स कंसिडर वन मोर, लो ignition temperature, low ignition temperature but above the room temperature, but above the room temperature, इसका ignition temperature तो कम होना चाहिए लेकिन वो रूम टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए, अदरवाइज आप जहाँ उसको रखेंगे वहीं वो फायर कैच कर लेगा। तो आपका आइडियल फ्यूल वो है जिसको आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर ले जाओ, कोई रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, बर्निंग के समय कोई भी हार्मफुल गैसेज नहीं रिलीज होनी चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। ओके देन स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूल, इट्स टाइप एज वेल एज आइडियल फ्यूल। अब हम देखेंगे बेटा फ्यूल एंड इन्वायरमेंट, फ्यूल एंड इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटेशन ऑफ फ्यूल, लिमिटेशन ऑफ फ्यूल्स, यानी फ्यूल तो बहुत अच्छे हैं, इनका हम यूज़ करके एनर्जी ले रहे हैं, बट इनके क्या लिमिटेशन है एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट, रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग बर्निंग, जब ये बर्न कर रहे होते हैं बेटा तो हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं। रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओके, और वी कैन से दैट वुड और काऊ डंग, ठीक है। तो जो भी फ्यूल क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, वो हार्मफुल गैसेस रिलीज कर रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहां से हम देख लेते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड that cause air pollution and headache as well as breathing difficulties in ह्यूमन बीइंग। हम लोगों में बेटा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके बर्निंग से क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, हेडेक होता है, एंड इट अल्टीमेटली मे लीड्स टू डेथ ऑल्सो। सेकेंड, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड that absorbs the heat and increase the temperature of the earth globally known as global warming। यानी बेटा कंप्लीट अगर बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल की तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट, absorption of heat, and after absorbing the heat it will cause global warming. What is global warming? Increase the temperature of the earth
ग्लोबली, यानी पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जा रहा है, अर्थ सरफेस का बढ़ जा रहा है, तो वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। लेट्स कंसीडर वन मोर, बर्निंग ऑफ fossil fuel also release oxides of sulfur and nitrogen that combines with rain and cause acid rain। ठीक है बेटा, दूसरा कंसिक्वेंस क्या है एयर पोल्यूशन का? एसिड रेन। पहला कंसिक्वेंस क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। सो बोथ ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज एसिड रेन may destroy the crops as well as this is also a threat for various natural monuments। आपने नाम सुना होगा ताजमहल की ब्यूटी को खतरा है एसिड रेन से। क्यों? क्योंकि वहाँ बेटा ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में, वहाँ से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं किससे? वाटर के साथ। और वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद वो रेन के ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आ रहे हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? व्हेन oxide of sulfur and oxide of nitrogen mix with water and comes along with rain। ऑक्साइड सल्फर के और नाइट्रोजन के जब मिक्स करते हैं वाटर के साथ और रेन के रूप में नीचे गिरते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में कह सकते हैं बेटा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन। चाहे वो आपके वुड हो, कभी भी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा क्या हो रही है? बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट कंबस्जन, एंड दैट कंबस्जन विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इफ इनकम्प्लीट कंबस्जन, जैसे वुड है, आपने देखा होगा काऊ डंग है, तो ये जल्दी से या इनका कंप्लीट कंबस्जन नहीं हो पाता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कंबस्जन हो रहा है, ठीक है, तो वो है कंप्लीट कंबस्जन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकलने लगेंगी, यानी सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से आएंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल, characteristics of fuel as well as burning of fuel and consequences of fuel to the environment। या हम कह सकते हैं environment के लिए क्या नुकसान करते हैं फ्यूल। Now we will discuss certain keywords, those are given in your NCERT। तो keywords कौन कौन से दिए गए हैं सभी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ keywords कौन कौन से हैं। combustion, first keyword combustion, second one is combustible substance, next है आपका non combustible substance, next है आपका बेटा फ्यूल, नेक्स्ट है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। तो इतने ही कीवर्ड्स दिए गए हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्हाट इज कंबस्जन? कंबस्जन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, तो कंबस्जन क्या होता है? कंबस्जन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में क्या देता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्शन इज नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वुड, ये सभी है। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्शन नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, फ्यूल आज ही मैंने डिस्कस किया। व्हाट इज फ्यूल? ठीक है, फ्यूल क्या होता है मैंने आपको आज ही बताया है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ये भी हमने आज ही डिस्कस की है, तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। व्हाट इज फ्यूल एंड व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्जन एंड गिव ऑफ हीट एंड लाइट। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है? कंबस्जन करने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसी को फ्यूल कहते हैं आप। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज in kilojoule
ड्यू टू कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल के कंप्लीट बर्निंग से, कंप्लीट कंबस्शन से जितनी हीट रिलीज होती है किलो जूल में, उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन टॉपिक as well as keywords. If there will be any confusion or any doubt, you will leave in your comment box, and ultimately just like the video, subscribe the channel and share with your friends. Now in the next video we will discuss with a new chapter, and I will also send the PDF of exercise. You all have to do exercise yourself. कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बट आफ्टर वॉचिंग ऑल 3 वीडियोज़, मेन टॉपिक पढ़ने के बाद आप वीडियो भी देखें। वीडियो देखने के साथ साथ इट इज़ मैंडेटरी टू रीड द NCERT। 2 चीज़ें करनी है, यू ऑल हैव टू वॉच द वीडियो एज वेल एज यू ऑल हैव टू जस्ट रीड द NCERT, एंड आफ्टर रीडिंग the NCERT and watching the video there will not be any confusion. So you all have to do exercise yourself, and if during completion of the exercise there will be any problem, you all free to ask your doubts. So that is all about for today. Thank you for watching the video. Have a nice day. Keep smiling.